سامنے لانا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جدت ہم نے 30 سال پہلے کرنا تھا وہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں پیچھے چھوڑا، اور آج میں ان 2-4 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ محترم صدر اعظم کفیل صاحب نے یہ بات کہی کہ سیز فائر کا جو ہوا ہے دونوں ملکوں کا، یہ بہت خوش آئین ہے۔ اس سے دونوں طرف کے کشمیری خوش ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا ایک سلسلہ بن سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف دونوں ملکوں کو نہیں بلکہ کشمیریوں کو بھی ملنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ یہ جو محترم فرحان مجاہد صاحب نے ایک تجویز دی کہ ہمیں نئے طریقے سے اس تحریک کو چلانا چاہیے، یہ بہت اچھا ہوا۔ میں نے بھی اس سلسلے میں کچھ 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ امید ہے اس سلسلے کو آگے چلایا جائے۔ ہم نے آج تک یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ کشمیر کو ہم نے صرف کشمیریوں تک محدود رکھا، وہ بھی صرف مسلمانوں تک، اور دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ یہ صرف مسلمانوں کی تحریک ہے۔ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر کے سارے، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، دلت بھی ہے، پنڈت بھی ہے، بودھ بھی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ ہم اس سینیریو کو، اس ایجنڈے کو آج تک نہ چلا سکے۔ میں فرحان مجاہد صاحب کی اس بات کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ اگر ہم نے مسئلہ کشمیر کو فوری حل کرنا ہے تو ہمیں دوسری قوموں کو بھی اس کے ساتھ چلانا چاہیے، اور یہ ہمارا، یہ کل کو اگر پلیبیسائٹ ہو جائے تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف رائے شماری میں صرف مسلمان ووٹ ڈالے گا اور ہندو نہیں ڈالے گا۔ اس وقت جو میرے گیلانی صاحب کا ووٹ کا وزن ہے وہی وہاں کے بھیم سنگھ کے ووٹ کا بھی وہی وزن ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور وہاں کے میکسیمم ہندو 5 اگست کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ واقعی حل طلب ہے۔ ہندوستان نے جبر سے اس خطے کو قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہندوستان کا اکوٹا نہیں ہے، یہ وہاں کا ہندو کہتا ہے، وہاں کا سکھ کہتا ہے۔ ہم نے اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے چلانا چاہیے۔ ایک اور بات، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے اس وقت عالمی دباؤ کا شکار ہے، FATF کا شکار ہے، کئی معاملات دہشت گردی کا شکار ہے، بنیاد پرستی وغیرہ وغیرہ بہت، اب ہمارے اپنے اسلامی ممالک بھی اس میں ہمیں گھیر چکے ہیں۔ جو ہمارے وکیل تھے، جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے ہمدرد تھے، سوائے پاکستان کے آج ہمارا کوئی نہیں ہے، مگر ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں۔ یہ تحریک تصور پاکستان سے، علامہ اقبال کے خواب سے پہلے کی تحریک ہے۔ 13 جولائی ہم یوم شہدائے کشمیر مناتے ہیں، وہ کوئی اس تحریک کا حصہ نہیں ہے، وہ 1931 سے تحریک کا حصہ ہوئی۔ اس وقت ہم نے شہادتیں دی ہیں، اور یہ تحریک چاہے اس میں کوئی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مخالفت کرے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اس تحریک نے منزل حاصل کر کے رہنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم باقی رہا پاکستان کے متعلق باہر جو افواہیں چلتی ہیں، مکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مطمئن ہیں، جیسے ہمیں اطلاعات ہیں، جیسے ہماری دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، ہمارے جتنے بھی آزاد کشمیر یا پاکستان کے جتنے قائدین ہیں، حکمران ہیں، اور باقی رہا کہ ہم مطمئن ہیں اس سلسلے میں جو اس وقت جا رہا ہے، جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں، ہم اس سے مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے یہ جاری رہا تو ہماری منزل جلد آسان ہو جائے۔ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنے
प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे कश्मीर के मुजाहिद और तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद चक साहब के एजाज़ में आज ये इवेंट हो रहा है। हम अप्रिशिएट करते हैं फरहान मुजाहिद चक साहब का जो कंट्रीब्यूशन है और जो इनके इक़दामात हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs का सीज़ फायर लाइन के सिलसिले में जो एग्रीमेंट हुआ, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और वी थिंक इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट रिसेंट आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये ठीक है, पास्ट बुलाना चाहिए, फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर रेजोल्यूशन इज़ पैरामाउंट। तो हम इसको सही डायरेक्शन, सही सिमत में स्टेटमेंट लेते हैं और दिस कैन रिजल्ट इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। और जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की हालात का ताल्लुक है, मुजाहिद साहब आपको भी बखूबी ये पता है, लेकिन मीडिया को हम ये बताना चाहते हैं कि जो भारतीय अफवाज जो 9 लाख के ज़ायद वहाँ पर तैनात हैं, इस वक्त न सिर्फ कश्मीरियों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, उनका मायशी कत्ल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, यानी देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीडिया पर कदगन लगाई गई है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है वहाँ, हमारे पाँव तले ज़मीन छीनी जा रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस इस वक्त ला रहे हैं। लेकिन इन सब जो तकलीफ़ें हैं मकबूजा कश्मीर के आवाम जो इस वक्त उठा रहे हैं एट द हैंड्स ऑफ इंडियन आर्मी, डिस्पाइट ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म, वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल टिल विक्ट्री। इसके साथ ही एक बार फिर चक साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, सफ़ी साहब जी बड़े हमारी मोहतरम शख्सियत, आप सफ़ी साहब कुछ कहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊंची आवाज़ में बोलिए। प्रेसिडेंट साहब का भी और फरहान मुजाहिद चक साहब का भी। और हकीकत ये है कि हिंदुस्तान ये तासुर दे रहा है इस वक्त दुनिया को कि कश्मीरियों के साथ कोई नहीं है। हमें एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार करना होगा कि अमदन हम दुनिया को ये दिखा दें कि दुनिया किस तरह कश्मीरियों के साथ है, और एक जिद्दत अपने तरीक़ेकार में लाने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ फरहान मुजाहिद चक साहब ने भी इशारा किया है और सदर साहब ने भी। तो मैं मुंतज़िर रहूँगा इस बात का कि हम उस नए नक्शे को देख लें कि हम किस तरीके से अपनी तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, ये बताइएगा कि शमीम शाह होगी बात, ये बताइएगा प्रेसिडेंट साहब के हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुली ऑफर दी है भारत को मुज़ाकरात की। आर्मी चीफ ने कहा है कि माजी को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए। दो अल्फाज में ये बताइए कि इन बयानात को या इस ऑफर को आप अप्रिशिएट करते हैं एज अ कश्मीरी प्रेसिडेंट? आपकी क्या राय है कि इन हालात के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं, जबकि हम कुछ माह पहले जो है हमारा उनके साथ तमाम मामला खत्म करने का इरादा? आपने पाबंदी लगाई है कि 2 अल्फाज में जवाब दूं? नहीं, मतलब 2 टोक 2 टोक, अच्छा 2 टोक, अच्छा ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोग मिन हैसल कौम हमेशा से जो है सफारतकारी के लिए तैयार रहे हैं। पाकिस्तान सफारतकारी के लिए तैयार रहा है। हिंदुस्तान जंग पे यकीन रखता है। अभी उसने जो है 9 लाख फ़ौजियों से वहाँ फ़ौज कशी की हुई है और कश्मीरियों की ज़िंदगी उसने अजीरन बनाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है, पाकिस्तान ने जो अपनी पेशकश कर दी वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने की, या यहाँ जो कश्मीरी रहनुमाओं ने की, तो देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान जो है सफारतकारी के सिलसिले में मुखलिस है। क्योंकि सफारतकारी पहले भी हुई है, 2 तरफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, बेनतीजा हुए हैं। हिंदुस्तान ने जो है बल्कि उसको
इस्तेमाल किया दो तरफ़ा मुज़ाकरात को अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए। तो इस वक्त ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने हिंदुस्तान की जांचना है कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि बाकी अक़वाम से जो मशवरा करना बेहद ज़रूरी है कि भाई देखिए कि हम तो हमेशा से मेज़ पे बैठने के लिए तैयार थे, मुज़ाकराती मेज़ पे बैठने के लिए तैयार थे, क्या वो सामने बैठने के लिए तैयार हैं? और जब बैठ जाएँ तो क्या वो मसला कश्मीर के हल के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? क्योंकि हम वी डू नॉट वांट टू गो थ्रू द मोशंस वंस अगेन। और ये है कि जो इसकी कसीरुल जहत एक वो बनी है डायमेंशन, उसको जिसको कहते हैं कि मल्टीलैटरल डायमेंशन जो बनी है, उसको हम खोना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये दुनिया के ऐवानों में ये मसला उठ रहा है जिससे बैनुल अक़वामी शहरियों का दबाव बढ़ रहा है, बैनुल अक़वामी पार्लियामेंट्स का दबाव बढ़ रहा है, इब्लाग़ आमा का, हम उसे खोना नहीं चाहते। ये क्योंकि ये कश्मीरियों की जो पूरी की पूरी तहरीक थी, उसको इस दबाव ने, इस पजीराई ने एक नई जिला बख्शी है। इधर से एक बहुत मजबूत आवाज़ आई। बस वो यही मेरा क्वेश्चन है, आपने साथ पूछे तो बड़ी एक अच्छी आपने इनिशिएटिव लिया कि खान साहब जैसे लोगों को आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप बनाए गए थे कि पूरी दुनिया में जो है बाइस बढ़ाएं, कश्मीर के इशूज़ को उठाएं, वो पार्लियामेंटेरियंस उस तरीके से आवाज़ को उठाने सके, उसके बारे में आप के साथ साथ ये पता है कि नए जो यूएस प्रेसिडेंट्स आए हैं जो बाइडन, अब आप समझते हैं कि आप कश्मीर कास के ऊपर वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? कौन से प्रेसिडेंट्स? हाँ जी, दो सवाल पूछे आपने। एक तो मैं ये कहूँगा कि मेरी असद कैसर साहब से बात हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि जी पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको बाहर भेजा जाए, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया की बेशतर पार्लियामेंट्स जो हैं और मगरबी